ગઈકાલે આપણે મોનોહાઇબ્રિડ ક્રોસ ખતમ કર્યું છે. વી હેવ ફિનિશ્ડ અપ ટુ મોનોહાઇબ્રિડ ક્રોસ અને બોથ ધ નિયમ laws we have already discussed, law of dominance and law of segregation, right? Okay, now today we are starting with the dihybrid cross. Fine, so it is part 2 of our Mendelian genetics. Mendel have conducted experiment on the pea plant with reference to 7 different traits, optional traits I mean, right? Okay, now if suppose when I'm thinking about any of the organism, organism have many characters. Say for example, pea plant. So what Mendel has found is 7 contrasting pairs of characters. So if I say take an example of human, so human may have many these kind of different contrasting characters, right? So what we right now focusing is about, say for example, when I have got one pea plant, right, and I am crossing it with the other pea plant. So with respect to that crossing, all the relative trait, 7 out of 7 trait are going to pass into the next generation, or single trait is going to be passed into the next generation. તો કે બધાય જેટલા છે એટલા, all 7 traits are gaining pass, right? So important parameter here for us to be considered is all traits are passing or forwarding together to the next generation. Fine. So this is the point what we are supposed to consider right now, and think when they are passing from one generation to the other all together, do they have any intermediary effect on each other or not? What kind of interaction they are doing with each other while they are passing from one generation to the other generation? So that inquisitiveness drawn attention of Mendel, so that he arranged dihybrid cross. So he considered 2 character, and then he observed what kind of effect, what kind of interaction it is happening between the traits of this character, right? So let us see what he observed and what we are supposed to understand by it, right? So basic idea I have shared with you, that what is we are supposed to consider here. Fine. So here we are doing the experiment with inheritance of 2 different traits, that is 2 different characters, and that is 2 different genes. Once again I would like to remind you that मेंडल ने जब ये एक्सपेरिमेंट किया था तब जीन वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता था.
सो मेंडल ने जो वर्ड यूज किया है वो ये है, डाई हाइब्रिड क्रॉस। ये मेंडल का वर्ड है, ये हमारी मॉडर्न जेनेटिक्स का साइंस है, ये ऑलवेज याद रखना होगा आपको। फाइन। सो डाई हाइब्रिड क्रॉस की मैं बात कर रहा हूं जहां पर क्रॉस हो रहा है ऐसे दो पेरेंट्स, राइट, कि जो डिफरेंट है दो कैरेक्टर में। एक पेरेंट, दो कैरेक्टर सेम टू सेम, दूसरा पेरेंट और वही दो कैरेक्टर, राइट, बट उसके एक्सप्रेशन अलग अलग है। से फॉर एग्जाम्पल कि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म लेते हैं, हम उसको दो कैरेक्टर को कंसिडर करते हैं, जिसके कॉन्ट्रास्टिंग पेयर को हमको दो इंडिविजुअल में देखना है। लाइक हमने मोनोहाइब्रिड में क्या किया था, हाइट को कंसिडर किया था, एक टॉल प्लांट था, एक ड्वार्फ प्लांट था। यहां पे हमको दो कैरेक्टर को स्टडी करना है ऑल टुगेदर, दोनों प्लांट में कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर के साथ। बाद में देखते हैं क्या होता है। तो इट इज अ क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट विच आर डिफरिंग इनटू टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, राइट। सो यहां पे हमने जिसको एग्जाम्पल की तरह लिया है वो है पी प्लांट, वो हमें पता ही है, बट उसके सीड का यहां पर आपके सामने रखा है एग्जाम्पल। अगर आप देखें मेरे पीछे तो दो टाइप के सीड यहां पे आपको दिखेंगे, दोनों में दो कैरेक्टर का डिफरेंस मैं आपको समझाता हूं। एक उसमें कलर का वेरिएशन रहेगा, राइट, येलो है एंड ग्रीन है। दूसरा उसका शेप अलग है, ये जो है राउंड शेप में है, ये जो है उसकी स्किन रिंकल्ड है। फाइन। तो ये दो अलग अलग कैरेक्टर है, ये दोनों कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है। तो पहला सीड कलर है, सीड कलर येलो एंड ग्रीन डिफरेंट। दूसरा सीड का शेप, सीड का शेप में क्या होगा, एक होगा राउंड और एक होगा रिंकल्ड। इज इट वेरी क्लियर टू यू, है ना? ओके, गुड। सो let us think about these two pairs of character and let us conclude with the set of experiment what Mendel has concluded here. Okay, so dihybrid cross. Okay, character number one. सीड कलर। सीड कलर में यू हैव टू ऑप्शंस। एक होगा येलो जो है डोमिनेंट, येलो जो है वो है डोमिनेंट, तो मैं उसके लिए कैपिटल वाई ये यूज करूंगा साइन। फाइन। उसके ऑप्शन में होगा ग्रीन कलर जो होगा स्मॉल वाई, राइट, स्मॉल वाई होगा दूसरा। एक है सीड का शेप, ये है कैरेक्टर नंबर 2। अब इसके ट्रेट्स भी दो ही है, एक है राउंड दैट इज कैपिटल आर, एक है रिंकल्ड दैट इज स्मॉल आर। व्हेन वी हैव डिजाइन्ड एन एक्सपेरिमेंट, जब हमने एक्सपेरिमेंट को डिजाइन किया था अकॉर्डिंग टू मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तब हमने पेरेंटल जनरेशन पी, उसके अंदर पेरेंटल जनरेशन पी उसके अंदर होमोजाइगस लिया था, होमोजाइगस डोमिनेंट वर्सेस होमोजाइगस रिसेसिव।
तो चलिए पहले यहां पर आते हैं, राइट। कैरेक्टर नंबर 1 का होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर्म होगा कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, राइट। क्या होगा? कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। लेकिन हमारे पास तो 2 कैरेक्टर हैं, तो मुझे दूसरे को भी कंसिडर करना है, तो उसका है कैपिटल आर, कैपिटल आर। डन। मुझे लेना पड़ेगा दूसरा पेरेंट भी, जिसके पास होगा रिसेसिव होमोजाइगस कैरेक्टर की पेयर, यानी कि ये स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। अब हम इसको समझ रहे हैं जीनोटाइप के बेस के ऊपर, लेकिन जब मेंडल ने किया था तो देयर वाज नो जीनोटाइप, तो उसको तो फिनोटाइप को ही कंसीडर करना है। तो लेट अस राइट फिनोटाइप। ये होगा कलर और शेप। पहले शेप है तो राउंड शेप है, और दूसरा कैपिटल वाई, दैट इज येलो सीडेड। तो ये उसका हो गया फिनोटाइप। तो उसने जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस करे हैं, वो मोनोहाइब्रिड के अंदर उसने ये दोनों पेरेंट राउंड एंड येलो वर्सेस रिंकल्ड एंड ग्रीन का यूज किया है। इसमें परफेक्टली समझ में आ रहा है मैं जो समझा रहा हूं, है ना? ओके। अब से फॉर एग्जांपल एक मेल पेरेंट है और एक से फॉर एग्जांपल फीमेल पेरेंट है। अब दोनों को क्रॉसिंग के लिए चाहिए होगा गेमीट, राइट। तो अब हमें सोचना पड़ेगा कि गेमीट कैसा होगा इसका। तो गेमीट तो एक ही बनेगा, सही फॉर एग्जांपल। इसमें से 2 टाइप के फैक्टर को जाना पड़ेगा यहां पर। क्यों? हमने 2 कैरेक्टर को यानी कि 2 जीन्स को कंसीडर किया है, राइट। उसमें कैपिटल टी या स्मॉल टी एक ही जाता था, यहां पे एक नहीं 2 जाएंगे, राइट। तो यहां पे कैपिटल आर भी जाएगा एंड कैपिटल वाई भी जाएगा, राइट। ये जाएगा या ये जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो एक ही टाइप के गेमीट यहां पे बनने वाले हैं। द गेमीट विच कंटेन्स कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई, दैट इज डोमिनेटिंग फैक्टर्स। दोनों डोमिनेटिंग फैक्टर्स ही है, डोमिनेंट फैक्टर है। हाँ, ओके। यहां पे जितने भी गैमेट्स बनेंगे उन सभी गैमेट्स के अंदर स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई ही जाएगा इनटू द गैमेट। अब जब इसका फर्टिलाइजेशन होने वाला है, तब जितनी भी प्रोजेनी मिलेगी, जितने सीड्स प्रोड्यूस होंगे, सीड्स को मैं सो करके अगर बड़ा करूंगा, उसमें से जो मुझे सीड्स मिलेंगे वो सीड कैसे होंगे? एक कैपिटल आर मैं यहां से लेता हूं, ये रहा। स्मॉल आर यहां से आएगा, कैपिटल वाई यहां से आया है, स्मॉल वाई यहां से आएगा। ये उसका जीनोटाइप है। फिनोटाइप इसका क्या रहने वाला है? अकॉर्डिंग टू यू फिनोटाइप क्या होगा? बोलो। Round and yellow seeds. Okay, so it is round and yellow seed. So if you see, it is following the pattern same as it has followed in the monohybrid cross. यहाँ पे 2 टाइप के एक्सप्रेशन है, 2 में से एक ही एक्सप्रेशन जा रहा है जो कि डोमिनेंट वाला है। डोमिनेंट वाला एक्सप्रेशन ही यहां पर मिलने वाला है। So it is following the same pathway whatsoever you have observed into the monohybrid cross of the Mendel experiment. यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम है समझने में? ऑल राइट। सो यहां पे सेल्फिंग हमें करवाना है, राइट। 2 प्लांट के
बीच में जो कि F1 जनरेशन के होंगे, कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y इनटू कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y। तो ये रहा अपना F1 जनरेशन। मैं यहां पे वापस आता हूं, कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y वर्स क्रॉसेस टू कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। अब ये दो पेरेंट है F1 जनरेशन के। अब इनको क्रॉस होना है तो यहां पे गैमेट्स की जरूरत होगी आपकी। तो गैमेट्स यहां पे आप कैसे बना सकते हो? ये दो में से एक को जाना है, ये दो में से एक को जाना है, पॉसिबिलिटी दोनों की सेम है। तो आपके पास ये कैपिटल R है ना, ये कैपिटल R की दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये कैपिटल Y के साथ जा सकता है या ये स्मॉल y के साथ जा सकता है। और similar kind of opportunity this small r is having. It can go with either capital Y or with the small y. राइट? यहां पे आपको नहीं समझ में आता है तो आप पूछ सकते हो, राइट? यहां पर भी ऐसा ही होगा, कैपिटल R कैन गो विथ कैपिटल Y एंड इट कैन फर्टिलाइज द एग विथ स्मॉल y एज वेल। स्मॉल r के पास भी दो ऑप्शन है, कैपिटल Y वाला ऑप्शन भी है एंड स्मॉल y वाला भी ऑप्शन है। मींस चार टाइप के गैमेट्स यहां पे प्रोड्यूस हो सकते हैं। कौन से देखिए, पहले कैपिटल R कैपिटल Y, दूसरा कैपिटल Y स्मॉल y, तीसरा स्मॉल r एंड कैपिटल Y एंड चौथा स्मॉल r एंड स्मॉल y। ये चार डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स कैन बी पॉसिबल टू बी फॉर्म्ड। समझ में आ रहा है? परफेक्ट, यस और नो? इसको मैं चलो दूसरे तरीके से भी बना सकता हूं, जिसके लिए मुझे प्यूनेट स्क्वायर का यूज करना पड़ेगा। तो प्यूनेट स्क्वायर का अगर यूज करता हूं मैं, तो एक साइड में रखूंगा R को, ये कैपिटल R, ये स्मॉल r, बराबर है ये कैपिटल Y और ये स्मॉल y। अब आप खुद ही देख सकते हो, सेम टू सेम रिजल्ट आने वाला है। कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल y। सो यू हैव टू डिफरेंट मेथड। डायरेक्ट मेथड भी अप्लाई कर सकते हो और ये प्यूनेट स्क्वायर वाला मेथड भी यूज कर सकते हो टू फाइंड द गैमेट्स ऑफ F1 जनरेशन। अब हमें F2 प्रोड्यूस करना है। अब F2 प्रोड्यूस करने के लिए हमें फिर से प्यूनेट स्क्वायर मेथड को यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास चार ऑप्शन है, चार यहां पर है, चार यहां पर है। तो 4x4 ये 1, ये 2, 3 एंड 4, ये 4x4 का मैंने एक अच्छा सा टेबल बना लिया। एक साइड मुझे रखना है इन चारों को, यानी कि कैपिटल R कैपिटल Y को, कैपिटल R स्मॉल y को, स्मॉल r कैपिटल Y को, स्मॉल r स्मॉल y को। एक साइड मुझे इन चारों को रखना है, मींस सेम टू सेम है, कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल y।
रेडी? ओके। अब क्या करेंगे हम, आपको पता ही है, इन दोनों को जोड़ देना है। कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। आई होप आई एम वेरी क्लियर विद दिस। समझ में आ रहा है? आपका आधा ही बॉडी मुझे दिख रहा है, तो ऐसा कुछ करिए कि जिससे कैमरा थोड़ा आपकी ओर आए। हाँ, एक ही नंग दिखाई दे रहा था, वो भी आधा, हमारी अधूरी कहानी वाला, है ना? सो यहां तक आप क्लियर हो। कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। एक तो हुआ मेरे दो अनमोल रतन, एक है राम तो एक लखन, है ना? ओके, अब इन दोनों को आपको जोड़ना है। कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। अब पूरा टेबल आपको बनाना है, मुझे नहीं। तो यू हैव योर बुक एंड यू प्लीज कैरी ऑन। बन जाए तो थम्स अप कर देना, मैं समझ जाऊंगा बन गया है। प्रैक्टिस हम हाथ से ही करने वाले हैं अभी, है ना? करेंगे अभी, चालू ही करिए। बुक में दिया हुआ है लेकिन हमें करना है। चलो, हम तीनों का हो गया है, आपका, मेरा और बोर्ड का, तीनों का, है ना? ओके, अब हम उसके फिनोटाइप को ट्राई करेंगे रिवील करने का। यहां पे एक कैपिटल आर है, एक वाई है, सब कैपिटल है। तो एक्सप्रेशन में अगर देखा जाए तो यहां पे राउंड एंड येलो आएगा, राउंड एंड येलो, राइट? तो सभी के यहां पर अगर मैं जो जीनोटाइप है उसके ऊपर से फिनोटाइप अलग करूं, तो मेरा जो टेबल रहने वाला है वो टेबल आपके बुक के अंदर यहां पे ऐसे शो किया है, अगर आप देखोगे तो पेज नंबर 63 के ऊपर है ये।
टेक्स्ट बुक के अंदर, मॉड्यूल का पेज नंबर मुझे याद नहीं है, डेफिनेटली मिल गया होगा शायद, है ना। ओके, यहाँ पे अगर टेक्स्ट बुक की डायग्राम को देखोगे आप तो उसमें कलर दिखेंगे आपको, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर को यहाँ पे कलर से हाईलाइट किया है। शेप तो ब्लैक एंड व्हाइट में भी देखने को मिलेगा, कलर नहीं देखने को, येलो एंड ग्रीन। तो ये एक बेनिफिट यहाँ पे रहेगा आपका टेक्स्ट बुक के अगर डायग्राम को खोल के बैठे हैं तो। सो फिनोटाइप यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे अलोंग विद द जीनोटाइप। मैंने लिख के रखा है आपके लिए, राइट। तो हमने जहां से स्टार्ट करना है हमको ये एक्सप्लेनेशन, वो पॉइंट नंबर 4.3 है, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स है, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस का एक्सप्लेनेशन है और ये उसका एक्सप्रेशन है। तो मैंने जो आपको अभी तक समझाया वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप देखेंगे तो होमोजाइगस राउंड येलो मींस डोमिनेटिंग कैरेक्टर दोनों, होमोजाइगस रिंकल्ड एंड ग्रीन मतलब के रिसेसिव कैरेक्टर। उसके गैमीट्स जब बने तो यहां पर जितने भी गैमीट्स बनेंगे दे वुड कंटेन द फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राउंड शेप, फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर येलो कलर। सो कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई ही यहां पे आने वाले हैं। कैपिटल आर यहां से आएगा, कैपिटल वाई यहां से आएगा। रेडी? तो ये सबसे पहली बात है। ओके, यहां पे स्मॉल आर यहां से आने वाला है, स्मॉल वाई यहां से आने वाला है, दोनों में से एक आएंगे। जितने भी बनेंगे आई मीन गैमीट्स, सबका जेनेटिक कॉम्बिनेशन तो यही रहेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई यहां पर, स्मॉल आर स्मॉल वाई। या जब वो F1 जनरेशन प्रोड्यूस करेंगे तो F1 जनरेशन का जो जीनोटाइप है वो ये रहेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और वो होंगे राउंड एंड येलो बट होंगे हिट्रोजाइगस। ये कौन से थे? होमोजाइगस थे, ये होने वाले हैं हिट्रोजाइगस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैपिटल आर था, यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर है, इसलिए ये हिट्रोजाइगस है और वो होमोजाइगस है। चलिए, इसमें कोई डाउट है? नहीं है ना? ओके, सो अब हम उसके प्यूनेट स्क्वायर से F2 जनरेशन वाला चार्ट पूरा जो मैंने आपको अभी करवाया था उसका जीनोटाइप आपने लिखे हैं जो भी, और उसका फिनोटाइप मैंने यहाँ पे मेंशन करवाया है। सो कैपिटल आर कैपिटल वाई राउंड येलो, राइट। तो उसको मैं एक पर्टिकुलर, आप देखोगे तो उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे रहा हूं, वही डायरेक्शन में उसको अरेंजमेंट उसका आप देख सकते हो। से फॉर एग्जांपल ये जो राउंड येलो है इस तरफ जाएगा ना तो राउंड येलो ही होगा पूरा, देखो तो है, इस तरफ जाएगा तो भी राउंड येलो होगा है, और ये दोनों एंड को आप जोड़ दोगे, राइट, ये दोनों एंड को आप जोड़ दोगे तो भी ये राउंड येलो ही रहेगा, ट्राइंगल बन गया। रेडी? ओके, सेम राउंड ग्रीन फॉलोज द सेम पैटर्न, देखिए सेम रिंकल्ड येलो फॉलोज द सेम पैटर्न, देखिए। अब बचा कौन है? एक ही बंदा, रिंकल्ड एंड ग्रीन, राइट। सो ये पैटर्न फिक्स है। आप किसी भी कैरेक्टर को ले लीजिए, उसके दो एक्सप्रेशंस को ले लीजिए और उसका अगर F2 क्रॉस करवाएंगे, राइट, डाई हाइब्रिड क्रॉस में F2 तक ले जाएंगे तो यही चार्ट आपको, सिमिलर डिजाइन आपको देखने को मिलेगा। सिर्फ इसमें ये बदलेगा, साइन, लेटर बदलेगा। कैपिटल टी स्मॉल टी की जगह पे मैंने कैपिटल आर स्मॉल आर किया है, या तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई किया है। सो वो सिर्फ एक फॉर्मेट बदलेगा, बाकी पैटर्न जो अरेंजमेंट का है वो सिमिलर मिलेगा आपको हर एक डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर। आई होप आई एम वेरी क्लियर विथ दिस। फाइन, अभी मुझे आपको जो समझाना है वो डिराइव करना
जीनोटाइप एंड फिनोटाइप को, हाउ कैन वी डिराइव द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप आउट ऑफ दिस बॉक्स। ये बॉक्स में से जीनोटाइप एंड फिनोटाइप पूरा मैंने आपको सिखाया, अब उसके रेशियो को डिराइव करते हैं, रेशियो। फाइन, तो वो कैसे करते हैं, चलिए। सबसे पहले मैंने लिया ये वाला, ये कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। कितने प्लांट्स है ऐसे गिनिए तो। ये कॉम्बिनेशन वाला एक ही होगा, राइट, ये एक है। फाइन, ओके। अब नेक्स्ट है ये कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। कितने हैं ऐसे, दो होंगे, है ना। कितने हैं, दो। कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, ऐसे भी दो मिलेंगे आपको। देखिए ये एक यहां पे गया, एक यहां पे गया, दो, ये रहा दो। देखिए एक यहां पे गया, एक यहां पे गया, ये रहे दो। अब एक यहां पे गया, एक यहां पे गया, बट ये तो पूरा जॉइंट है, तो 1 2 3 4 हो गए। ये 4 वाले कौन से हैं, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, वो कितने हैं, 4। अगेन पैटर्न है, एक पर्टिकुलर पैटर्न है उसमें। फाइन, ओके। तो ये खत्म हो गया, ये पूरा हो गया, ये 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 इतने सब का टर्न आ गया है। अब मैं यहां से ऐसे जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा, ये आ गया कैपिटल आर। यहीं पे करता हूं, कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। देखिए तो कितने हैं, एक ही होगा। उसके बाद इसका हो गया, इसका टर्न, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, कितने हैं देखिए, दो है, एक यहां पर है और एक यहां पर है, राइट। तो ये है 2। ओके, अब यहां से हमें करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कितने हैं, एक ही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है स्मॉल आर, सॉरी ये स्मॉल है, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये होंगे दो। ये यहां पर है एक यहां पर है, दो है। एंड एक ही बचा है अब, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, जो कि एक ही है। रेडी, इसमें कोई डाउट, ओके। अब देखते हैं फिनोटाइप। ये होगा राउंड येलो। काउंट कीजिए कितने हैं टोटल, 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ऐसे। ये है राउंड एंड ग्रीन, दे आर 3। ये है रिंकल्ड एंड येलो, और वो भी है 3, और एक है रिंकल्ड एंड ग्रीन। एक। सो ये हो गया आपका जीनोटाइप का रेशियो, ये हो गया आपका फिनोटाइप का रेशियो, राइट। तो फिनोटाइप, नंबर कितने हैं, नंबर ऑफ फिनोटाइप कितने हैं, 4। एक,
2 3 4 टाइप के फिनोटाइप है, राइट। एंड फिनोटाइप का रेशियो कितना है? 9 3 3 1। 9:3:3:1 ये है उसका फिनोटाइप का रेशियो। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं जो लिख रहा हूं वो, राइट। अब मैं जा रहा हूं जीनोटाइप में। जीनोटाइप के नंबर काउंट करके मुझे दीजिए कितने हैं। ओके सर, 9 है, यस। अब मुझे रेशियो भी फाइंड करके दीजिए। सर 1:2:4:1:2:1:2:1:1. वाह। So 1:2:2:4:1:2:1:2:1. This is the final outcome of the genotype ratio. कोई भी कैरेक्टर ले लो, कोई भी ऑर्गेनिज्म ले लो, जब आप हाइब्रिड क्रॉस करते हो तब यही फिक्स प्रोपोर्शन आपको मिलता है यूजुअली व्हेन इट इज फॉलोइंग द मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न। फाइन। तो अब कोई भी कैरेक्टर दे दिया जाए आपको, कोई भी डिफरेंट ट्रेट्स दे दिया जाए दोनों कैरेक्टर के, और आपको डिजाइन करने को बोले एक्सपेरिमेंट डाइहाइब्रिड का, तो आप इजीली कर सकते हो। आई एम क्लियर विद दिस और नॉट, है ना? ओके। ऑलराइट, सो जो मैंने आपको समझाया एग्जैक्टली वही यहां पर आपके लिए रखा है, राइट, कि किस तरह से ये जीनोटाइप्स एंड फिनोटाइप्स के रेशियोज को आप डिराइव कर सको। तो वो पूरा मैंने सिस्टम आपको समझा दिया है जो यहां पर दिया गया है, राइट। सो आपका 9:3:3:1 का रेशियो, राइट, ये है फिनोटाइप 9 वाला, यानी कि राउंड एंड येलो। 9 राउंड एंड ग्रीन, 3 रिंकल्ड येलो, 3 रिंकल्ड ग्रीन, 1। ये है आपका फिनोटाइप, डाई हाइब्रिड क्रॉस के फिनोटाइप का जो रेशियो है वो। ओके। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू में आपके सामने रखने जा रहा हूं। सिर्फ 3 छोटी सी लाइन यहां पर दी गई है, उसको केयरफुली हम कंसिडर करके इसको समझने वाले हैं। आपके पास नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं? 2, राइट। चलो हम वहां पर जाते हैं। ओके, कैरेक्टर नंबर 1, कैरेक्टर नंबर 2, इसके दो आपके पास ऑप्शंस है ट्रेट के, राइट। कैरेक्टर नंबर 1 जो है सीड का कलर था, एंड दूसरा था वो शेप था। तो शेप राउंड भी हो सकता है, रिंकल्ड भी हो सकता है, कलर येलो भी हो सकता है एंड ग्रीन भी हो सकता है। तो ये है डोमिनेंट ट्रेट, ये है रिसेसिव ट्रेट, अगेन ये है डोमिनेंट ट्रेट और ये है रिसेसिव ट्रेट। आई होप आई एम वेरी क्लियर विद दीज। मोनोहाइब्रिड क्रॉस की जब मैं बात करूं तो ये भी एक मोनोहाइब्रिड है और ये भी एक मोनोहाइब्रिड है। हम साथ में कंसीडर कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन इंडिविजुअली अगर मैं देखूं तो ये तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस ही रहने वाला है। एम आई करेक्ट और नॉट? तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जब मैं रेशियो लेता हूं फिनोटाइप का, क्या था वो?
Sir, capital R smaller and capital Y small y. फिर से Sir, capital Y and small y and capital R and small r. मैं ये बोल रहा हूं कि मैंने एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया, जो हमने कल सीखा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस। उसमें F2 जनरेशन जो है, F2 जनरेशन का मुझे फिनोटाइप रेशियो चाहिए। क्या था वो? यस Sir, 3 यस, इट इज 3:1 का रेशियो है। तो इसका रेशियो क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए 3:1। इसका रेशियो क्या होना चाहिए? 3:1 होना चाहिए। तो हम चेक करेंगे इंडिविजुअली। अभी चलिए चेक करते हैं कि ऐसा सही में है। जो मेंडल सोचते हैं, जो मेंडल करते हैं, वो दोनों मैच होता है या नहीं होता है, वो चेक तो करना पड़ेगा ना। क्रॉस चेक करते हैं। चलिए फाइन, ओके। अब यहां पे ये जो रिजल्ट है आपके सामने, आपने भी वो करा है बुक के अंदर। अब आपको काउंट करके देना है मुझे। ये रहा, ये प्लेन, उसके ऊपर दो राउंड राउंड करके रखा था। तो पहला कैरेक्टर जो राउंड या तो रिंकल्ड है, तो राउंड का नंबर काउंट कीजिए, रिंकल का नंबर काउंट कीजिए, डिफरेंस दीजिए मुझे यहां से। टोटल 16 है। 1 2 3 4, 4 4 जा 16 है। 16 में से राउंड कितने हैं एंड रिंकल्ड कितने हैं? Sir, 12 राउंड है और wrinkle है. गुड। राउंड कितने हैं? 12। एंड रिंकल्ड कितने हैं? 3। हो गया आपका रेशियो। Sir, 4. सॉरी 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 सॉरी। सो आपका रेशियो हो गया ना। मैं अगर ये ऐसे रखूं तो इट कम्स टू 3/1 ही आएगा। 3:1 ही आया रेशियो। मींस उसने जो मोनोहाइब्रिड में करा था वो यहां पे भी लागू होता है। अब आप येलो इन ग्रीन को काउंट करके बोलिए मुझे। चलिए फटाफट वो भी चेक कर लेते हैं। सर, वो स्लाइड करो ना, आपने फिनोटाइप नहीं लिखा है. अच्छा ओके। बार येलो છે ને 4 ગ્રીન છે. ओके 12। डन। सो फर्स्ट फेज का इंटरव्यू उसने क्लियर कर लिया है जीपीएससी का। बट अब हम चलते हैं सेकंड इंटरव्यू में, है ना। जीपीएससी में इंटरव्यू काफी सारे होते हैं, पता है ना, राइट। तो यहां पे मुझे करना होगा ये। क्यों? दोनों को एक साथ मुझे कंसिडर करना है ना, राइट। तो मेरे पास तो दो ऑप्शन है ऐसे। मेरे पास तो दो ऑप्शन है ऐसे। रेडी? सो 3 राउंड, 3 राउंड, 3 येलो, 3 × 3 9 राउंड येलो प्लस राउंड ग्रीन 3:1 और 3 × 1 सॉरी। सो 3 राउंड इन ग्रीन।
प्लस 1/3 wrinkled yellow plus 1 1 1 wrinkled green. आ गया ना 9:3:3:1 का रेशियो आपका. राउंड येलो 9, राउंड ग्रीन 3, येलो रिंकल्ड 3 एंड रिंकल्ड ग्रीन 1. ये हुआ आपका मैथमेटिकल प्रूव. मैंने बोला था ना वो हमने मोनोहाइब्रिड में भी किया था. अगेन हमने डाई हाइब्रिड में भी उसको मैथमेटिकली प्रूव करके दे दिया है. मींस इट इज प्रूवन मैथमेटिकली एज वेल. बायोलॉजिकली वो प्रूव हो ही रहा है, बट उसके एडिशनल प्रूफ की तरह उसको मैंने मैथमेटिकली भी वंस अगेन प्रूव करके दे दिया आपके सामने, है ना. सो ये रहा उसका कंसिडरेशन जो मैंने आपको अभी दिया कि दिस रेशियो कैन बी डिराइव्ड एज कॉम्बिनेशन सीरीज ऑफ 3 येलो इज टू 1 ग्रीन. 3:1 का होगा येलो ग्रीन का रेशियो, एंड राउंड रिंकल का रेशियो भी 3:1 का ही होगा. सो 3:1 इंटू 3:1 कम्स टू 9:3:3:1 का रेशियो, जो मैंने अब भी समझाया आपको प्रीवियस स्लाइड में. मैंने थोड़ा इलेबोरेट करके समझाया, यहां पर सीधा गिवन है. दैट्स द डिफरेंस ओनली. तो यहां तक आपको अगर कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, डाउट, क्वेरी है तो पूछ सकते हो. ऑल राइट. ये ऑलरेडी मैंने आपको डिस्क्राइब करके पहले ही समझा दिया है कि हाउ टू डिराइव जीनोटाइप रेशियो which comes to 1:2:1:4, sorry 1:2:2:4:1:2:1:2:1. यहां पे थोड़ा सा एक प्रिंटिंग मिस्टेक है यहां पर, बट इसमें क्या है कि हमने जैसे लिखा है ऐसे नहीं लिखा होगा शायद, इसलिए थोड़ा इधर उधर उलट पुलट है. हमने जो करा था वो किया था, पहले 9 को डिवाइड कर दिया 1 2 2 5 में, सॉरी 1 2 2 4 में, बाद में 3 को 1 2 में, बाद में 3 को 1 2 में, बाद में 1. तो वो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में हुआ था हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो. ओके, सो इसमें आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम. ऑल राइट. अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, एक लॉ और डिराइव करा. वो लॉ हुआ है डिराइव कहां से? तो डाई हाइब्रिड क्रॉस के एक्सपेरिमेंट के बेस के ऊपर से ये लॉ को हमने डिराइव करा है. आपका वो 64 नंबर ऑफ एनसीईआरटी वहां पे वो दिया गया है, 64 नंबर के पेज के ऊपर. अगर मिला हो तो ऑल राइट. अब ये लॉ क्या कहता है, उसका मतलब क्या है, उसको समझने का एक अटेम्प्ट करते हैं. थर्ड लॉ, हमने 2 लॉज ऑलरेडी मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेस के ऊपर से स्टडी करे थे. पहला लॉ क्या था? लॉ ऑफ डोमिनेंस. याद है किसी को? ओके. सेकेंड लॉ कौन सा था? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. एंड थर्ड जो है ना वो है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. ओके, असॉर्टमेंट का मतलब क्या होगा? असॉर्टमेंट छुट्टा पड़ना, असॉर्ट होना, अलग होना. तो बेस्ड ऑन प्रीवियस एक्सपेरिमेंट, छुट्टा कौन होता है? फैक्टर्स. कब होते हैं?
एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, तब की बात है, तब वो इंडिपेंडेंट है। अब इंडिपेंडेंट वर्ड यहां पे इंप्लाई क्यों हुआ है? जो पहले के लॉ में नहीं था वो यहां पर है। तो पहले एक था कैरेक्टर, अब कैरेक्टर दो है। पहले एक था जीन, अब जीन दो है। पहले दो थे फैक्टर, अब चार है फैक्टर। अब समझ में आ रही है बात? तो ये लॉ एक्चुअल में समझाना क्या चाहता है कि दो कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाले दो जीन्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है एक क्लास में से दूसरे क्लास में जाने के लिए। अगर आप दोनों में से एक को एम्स कॉलेज मिलता है, एक को एफएमसीजी मिलता है, तो आप एम्स वाला थोड़े ना छोड़ देगा कि नहीं मेरे बाजू वाला एफएमसीजी में जा रहा है और मैं एम्स में क्यों जाऊं। ऐसा तो नहीं होगा ना। आपको जिस कॉलेज में जाना है मिलता है वहीं पे जाना पड़ेगा, दूसरे को वहीं पे जाना पड़ेगा बेस्ड ऑन सर्कमस्टेंसेस। तो आप इंडिपेंडेंट हो नेक्स्ट ईयर के लिए एडमिशन में, डिपेंडेंट हो आप इसके 11th में जब थे और 12th में आए थे तब थे, तब दोनों एक ही क्लास में थे, 12th में भी एक क्लास में हो। लेकिन इसके बाद जो होगा उसमें ये जरूरी नहीं है। सो यू आर इंडिपेंडेंट। अभी भी इंडिपेंडेंट हो, जरूरी थोड़ी ही ना इस स्कूल में आप पढ़ो, किसी भी स्कूल में आप पढ़ सकते हो 12th स्टैंडर्ड। एम आई करेक्ट और नॉट? सो दोनों जीन मतलब आप दोनों इंडिविजुअल स्टूडेंट, दे यू आर इंडिपेंडेंट टू मूव। एक के ऊपर दूसरा डिपेंडेंट नहीं है। तो एक के फैक्टर के साथ दूसरे का फैक्टर जाता है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप दोनों को एम्स में मिल जाए। नहीं जाना है तो अलग बात है, तो भी आप इंडिपेंडेंट। मिल रहा है, नहीं जाना है, यू आर इंडिपेंडेंट। बट नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं पे तो जाओगे ना। सो नेक्स्ट स्टेप के लिए जा भी सकते हो साथ में और अलग होके। आगे जाना है वो फिक्स है, आगे जाना है वो फिक्स है। So that's what this rule means. It is based on the result of dihybrid cross. ये rule. It states that when more than a pair of characters are involved into the cross, factor pair independently segregate. उसका जो segregation होना है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है फ्रॉम द अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर। एक पेयर ऑफ कैरेक्टर दूसरी पेयर ऑफ कैरेक्टर से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होता है। अब उसको मुझे और भी केयरफुली आपको समझाना पड़ेगा, वरना आपके दिमाग में बैठने वाला नहीं है। मुझे पता है, इतने सालों का एक्सपीरियंस है मेरा, है ना। तो चलिए आपको इजीली समझ में आए उस हिसाब से समझाने की ट्राई करता हूं मैं फिर से डाइहाइब्रिड क्रॉस को आपके सामने रखता हूं जो हमने अभी समझा है। उसमें पेरेंटल जनरेशन कैपिटल आर आर कैपिटल वाई वाई क्रॉस्ड बाय स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई, राइट? ओके। यहां पे गैमीट बनने वाला है कैपिटल आर कैपिटल वाई। यहां पे जो गैमीट बनेगा वो होगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। और इसके फ्यूजन से आपके पास जो F1 आने वाली है वो F1 के बारे में अगर मैं बात करूं, सो इट वुड कंटेन कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। मैं सिर्फ जीनोटाइप ही लिख रहा हूं, फिनोटाइप की मेरी अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए। एम आई वेरी करेक्ट? ओके। अब इसको मुझे सेल्फिंग करवानी है, सेम टू सेम कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ, राइट? यस और नो? ओके। अब मुझे अभी जरूरत पड़ेगी मेरे जीनोटाइप की, अभी मुझे जरूरत पड़ेगी समझने के लिए मेरे जीनोटाइप की, राइट?
तो यहां पे जो जीनोटाइप था वो था राउंड एंड येलो का। यहां पे जो जीनोटाइप था वो था रिंकल्ड एंड ग्रीन का। यहां पे जो जीनोटाइप है वो भी है राउंड एंड येलो का। अब मैंने जब यहां पर गैमिट्स के बारे में हमने जो प्यूनेट स्क्वायर बना के लिया था तो 4 टाइप के गैमिट बने थे, कैपिटल आर और कैपिटल आर, स्मॉल आर और स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। एप्लीकेबल है दोनों के लिए, सेम टू सेम। रेडी? अब इन दोनों का जब क्रॉसिंग हुआ और हमें जो नेक्स्ट जनरेशन मिली थी या मिलती है वो F2 में विथ रिस्पेक्ट टू, अगर मैं सिर्फ फिनोटाइप को लूं अभी फिलहाल के लिए, तो राउंड येलो, राउंड ग्रीन, wrinkled येलो, wrinkled ग्रीन, ऐसी 4 टाइप्स मिली थी मुझे। 9:3:3:1 के रेशियो में। यहां तक आपको अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है अंडरस्टैंड करने में, करेक्ट? ऑल राइट। हाँ, सर यहाँ पे F1 जनरेशन में कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल आर कैपिटल वाई आएगा ना, और कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई आएगा ना, उधर आपने दो बार कैपिटल आर F1 जनरेशन के साथ यहां पर कैपिटल कैपिटल आर कैपिटल वाई आएगा ना। अच्छा, इट इज ओके। हो गया ना? अब स्मॉल वाई सर स्मॉल वाई ओके, वो तो उतावड़ में हो जाता है ना। लोग कहते हैं उतावड़ में आंबे नहीं पाकते हैं, तो नहीं पका। ओके, अब हमको जो पॉइंट कंसीडर करना है उस पॉइंट पे चलते हैं। तो मैं इसके पेरेंट के बारे में बात करता हूं। F1 F2 का पेरेंट 2 है, उसके रियल पेरेंट ये है और उसके ग्रांड पेरेंट ये है, राइट? तो ये भी उसके पेरेंट ही है और ये भी उसके पेरेंट ही है। पेरेंट्स के फिनोटाइप को मैं कंसीडर करूं अगर, तो पेरेंट के फिनोटाइप 2 टाइप के ही है। देखिए, राउंड के साथ येलो है, रिंकल के साथ ग्रीन है, राउंड के साथ येलो है? अब यहां पे ऐसे कितने हैं, काउंट कीजिए। 2 है, ये रहे, एक ये है, एक ये है। ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। नाम आपको याद रखना है, मैं जो बोल रहा हूं पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। पेरेंटल कॉम्बिनेशन आउट ऑफ 16 कितने हैं टोटल? सर 10 यस,
10 आउट ऑफ 16 परसेंटेज वाइज अगर हम बात करें तो कितने हो गए वो? 62.5। ये फिगर आपको याद रखना है, इट इज नॉट गिवन, याद रखना है ना। अब मैं बात करता हूं नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस की। जगह वहां नहीं है, यहां पर है तो मैं यहां पे शिफ्ट हो गया। नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन कितने हैं? सर 37.5। हाँ 37.5। यस, टोटल 6 आउट ऑफ 16, इट इज 37.5%। ये इंपॉर्टेंट फिगर्स रहने वाले हैं जो हमें नेक्स्ट चैप्टर में, या तो नहीं चैप्टर तो नहीं लेकिन नेक्स्ट टॉपिक में आने वाले हैं। इसलिए मैंने आपको बोला कि ये आपको याद रखने हैं। पेरेंटल कॉम्बिनेशन, नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन, या मैं इसको रिकॉम्बिनेंट भी बोल सकता हूं। रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेशन वर्ड आया है आगे, चैप्टर नंबर 10 स्टैंडर्ड 11 मियोसिस रिकॉम्बिनेशन। तो ये है रिकॉम्बिनेशन आपका, अंडरस्टूड। ये क्या है आपका? रिकॉम्बिनेशन है। तो ये रिकॉम्बिनेंट है, यानी कि नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। पेरेंटल कॉम्बिनेशन दो थे, ये दो है नए, वो रिकॉम्बिनेशन के रेशियो है। इज इट वेरी क्लियर? है ना? ओके, तो ये जो है कहां से आए? ये जो है नहीं, कहां से आ जाते हैं ये लोग, है ना? यस सर दैट इज वेरिएशंस। यहां से आ जाते हैं। मैंने आपको थर्ड लॉ किस जगह पे होता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहां पे होता है, उसका सरनामा समझाया है ना? समझ में आ रही है बात? अभी देखिए, कैपिटल आर को कैपिटल वाई के साथ ही जाना है ऐसा नक्की नहीं होता है, वो तो स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है। अंडरस्टूड? स्मॉल आर का फिक्स नहीं है कि कैपिटल वाई के साथ ही जाए, वो स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है, कैपिटल वाई के, दोनों चॉइस है उसके पास भैया। अंडरस्टूड और नॉट? बस इसी को कहते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो वो इस जगह पे देखने को मिलता है, यहां से उसने उस लॉ को डिराइव किया है। गैमीट फॉर्मेशन ऑफ F2 ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस। देखो सेग्रीगेशन भी हमने वहीं से लिया था गैमेट फॉर्मेशन में, तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी कहां से अंडरस्टैंड करना है हमें? गैमीट फॉर्मेशन से ही। याद रह जाएगा इतना परफेक्टली, है ना? ओके चलिए यहां पे दूसरे तरीके से समझाया है विथ रेफरेंस टू क्रोमोसोम। ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, ये ए क्रोमोसोम है, ये बी क्रोमोसोम है। तो ए का एक पार्ट, बी का एक पार्ट एक साथ में गया, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ए का ये पार्ट जाएगा, बी का ये पार्ट जाएगा। देखिए दोनों पॉसिबिलिटीज है। समझ में आ रही है बात? है ना? तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। ये दो क्रोमोसोम है, ये ऊपर का क्रोमोसोम है, ये नीचे का क्रोमोसोम है। ये क्रोमोसोम के साथ ही ये क्रोमोसोम जाएगा ऐसा नक्की नहीं होता है। अगर इसके साथ इसको जम गया तो बात ठीक है, वरना उसको इसके साथ भी जम सकता है, कोई अपने चॉइस नहीं है इसमें। इंडिपेंडेंट है वो दोनों असॉर्टमेंट के लिए। इज इट वेरी क्लियर? है ना? सो एक छोटा सा पॉइंट रह जाता है, दैट इज यहां पर हमारे डिस्कशन में, आज के डिस्कशन में, और यह है कंसेप्ट
कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस, लेकिन कोई चिंता नहीं है, नेक्स्ट कल के लेक्चर में उसको कवर कर लूंगा, है ना। ओके फाइन, आई विल सी यू टुमारो, टेक केयर, हैव ए नाइस टाइम। बोलो। नेक्स्ट बुक का सिलेबस चैप्टर नंबर 1 and 2 ऑफ स्टैंडर्ड 12, बट आपका वो हुआ नहीं है, 1 हुआ है 2 नहीं हुआ है, ऐसा है ना। तो आपके टीचर को बोल दीजिएगा आपका पेपर निकाल ले और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 का ही उसमें से ले, है ना। ओके बेटा।